even the questions are top secret. हाँ, अच्छा बेटा तुम लोग नहीं बोलोगे ना तो I'll keep on teasing you kids. I like to tease my kids. मैं सबको सबको परेशान करता रहूंगा. Are your questions a top secret and all of you are not gonna tell your questions? कोई क्वेश्चन है yes no बोलने में क्या जाता है मेरे को ये समझ में नहीं आता. Any issue in terms of saying yes or no? बताओगे या नहीं बताओगे? हेलो. सर सर नहीं है अभी तक क्वेश्चन। Okay, done. So we know that uh, people are the companies are gonna follow one of these strategies to sell their मशीन्स। product. We know that people are gonna purchase the product if there are needs and wants. The needs and wants until unless they are converted into a demand, no company would ever address to them, right? हम लोग के पास need हो सकता है, we can have the demand, we can have the want, but if it is not converted into a demand, then no company would try to address it. हम किसी भी गरीब आदमी के लिए या किसी भी आदमी को खरीदने की जरूरत नहीं है, हम उसके सामान नहीं बेच सकता है, right? We cannot sell any item to any person who either doesn't need it or doesn't have the money to pay for it. दोनों हालत में हम नहीं बेचेगा. And all these things processes started with the British Industrial Revolution. This is what we know till now. But one more thing, and we have understood the product also, that every product has 5 layers. Core, which is the basic function that the product is going to perform. Generic, it is the hard version of the product which we can feel and touch. Expected, it is what we as customers want to purchase while we are going to purchase any product. Augmented is that the company is going to make a complete product out of our expectations. So in order to make a complete product, they are required to add certain extra features so that our expectations are totally met and we get something as augmentation. And potential is that if given certain circumstances, the product can perform the functions which are beyond the core, generic, or expected. Right? For that matter, we were told that people are gonna purchase utility, and then we discussed certain examples like bikes can get you friendship, cars can give you the feeling of traveling in luxury all the time, washing machines can give you a happy family. All those things we already have discussed, right? But we need to understand the concept of utility first. And that concept of utility can be understood if we take this part with more clarity, right? So, can any one of you help me in terms of understanding what is a utility? My slide is visible now. हाँ सर विजिबल। Yes, sir, Right. visible. So, please tell me what is a utility? Because now we know that people are going to pay money for to fulfill their utilities. If any product is able to provide any utility to the customer, then there are chances that we'll be able to sell it. But if there is no utility, like right now, I don't have any utility to the painting of Mona Lisa in my home because I have a smaller home. The painting needs a large wall to display. Painting needs something, a very good lighting arrangement. I don't have all those things in my home, so I don't have any utility for the Mona Lisa painting. The only utility that if I think very hard, is that somehow I acquire the painting and then I try to resell it in the market at a very high prices, which is the only utility. But actually, I would be using the painting of Mona Lisa, which is a very pricey item, right? All of you must have heard about the painting of Mona Lisa, the smiling girl, Mona Lisa painting. सुना है ना? Hello, सर Yes, sir. right? So please help me in understanding what is a utility. What is it? Because somewhere down the line we are going to join a company, and all of you are going to join the tourist industry. If you don't understand the tourist industry, if you don't understand what you are out there to sell,
you would not be, you would not remain a productive part of the company. Or if you start your own office itself, you start your own traveling agency, even then you would be required to understand what is it that you are trying to sell. Because if at, let's say, I am trying to sell a badminton racket, so I cannot pitch a cricket bat. If I am trying to sell a car, so I would never try to pitch a juicer, mixer grinder, right? So utility is something that we are required to understand, and this is something which can come from our common knowledge, general knowledge. And this is what the textbooks have started telling us, that utility is something which can fill a gap between present and future. I just need to understand this word present and future, ये क्या है जो एज ए गैप इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और वो क्या है जो जो आइटम इस गैप को फुलफिल करता है, हम कहते हैं उसकी यूटिलिटी है। तो ये क्या चीज है प्रेजेंट एंड फ्यूचर? और फ्यूचर शुड बी ऑलवेज डिजायर्ड वन, है ना? हम लोग ये तो डिजायर कर ही नहीं सकते कि टुमारो वी आर ट्रांसफर टू अफगानिस्तान। तो हमारे पास एक फ्यूचर होता है डिजायर्ड फ्यूचर। ऑल ऑफ अस हैव सर्टेन, लाइक ऑल ऑफ यू किड्स आर स्टडी, all of you kids are acquiring educational knowledge, all of you kids are acquiring degrees, so there has to be a purpose कि क्यों तुम लोग ये डिग्री अर्न कर रहे हो। कोई बताएगा मुझे why you kids are studying? तुम बच्चे पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ये तो बता सकते हो मुझे। Yes, sir. हाँ, क्यों कर रहे हो? To get knowledge and to get degree also. दैट इज, उससे उससे मिलेगा क्या फायदा? क्या? जैसे वो तो यही हुआ ना, हमारे घर में मोनालिसा की पेंटिंग आके लगा दी किसी ने, ना हमारे पास कोई इस्तेमाल है ना कुछ है। अगर नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, डिग्री एक्वायर कर रहे हो, तो कोई पर्पस होगा, क्यों कर रहे हो? खाली वो डिग्री पीस ऑफ पेपर घर में रख के तुम लोग बैठ जाओगे क्या? To get an establishment or a job. Yes. So all of you want to get a job or an employment. या तो सेल्फ स्टार्टअप होगा, या किसी कंपनी में शुरुआत करोगे जॉब का। So you kids have a desired future कि somewhere down the line you would start earning your own money. That is the desired future, है ना? कि Yes, sir. हमको कुछ टाइम बाद अपना खुद का पैसा कमाना शुरू करना पड़ेगा। पेरेंट्स कैन नॉट फीड अस फॉर आवर लाइफ टाइम, somewhere down the line we are required to start earning, right? So that desired future, and current future, that you don't have a job, that's why you are not earning money. So present is that you don't have a job and you are not earning money. Desired future is that you have a job and you are earning money. That's it. And the gap now, anything which can fulfill this gap between present and desired future, that is going to become a product. So let's say if I am hungry right now, I have not had my breakfast and I am feeling hungry, so my desired future would be after 10 minutes or 15 minutes that something should go into my stomach as food. So empty stomach, hungry man is my present, and filled stomach with food is my desired future in 30 minutes or 35 minutes. And the only thing that can fill this gap is food. So right now, food would become product to me. Let's say I am feeling cold. So my present is that my body is feeling cold. My the shirt is not able to protect my body from the extreme cold that is prevalent around me. So my desired future would be something warm around my body, and that something warm could be a sweater, a blanket, or a quilt. All those things are gonna become the product too. So anything which can fulfill a gap between present and future is a product, is having some utility. Future is always desired future, not never the undesired future. Because like all of you kids are working right now, you are studying to get a job. Let me offer you a job in Afghanistan. Would you go? अफगानिस्तान भेजेगा, जाओगे जॉब करने? हाँ सर। बेटा जैसे तुम सब लोग ना नौकरी करने के लिए, काम शुरू करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, यही तो बताया अभी। यस सर। अब मैं तुम लोग को जी। एक जॉब ऑफर करता हूँ अफगानिस्तान में, नेक्स्ट वीक। जाओगे? नहीं सर। ठीक, अनडिजायर्ड फ्यूचर।
जॉब है लेकिन फ्यूचर Yes, sir. अनडिजायर्ड है। तो ये जो जॉब है ये हमारे लिए प्रोडक्ट नहीं बन सकती, ये जो सर्विस है ये हमारे लिए प्रोडक्ट नहीं बन सकती। सो फ्यूचर शुड बी ऑलवेज डिजायर्ड वन, and that desired future, anything which can enable us to attain, is going to be called as product with some utility. Let's see some features of utility. Utility is सी, समुद्र वाला बिल्कुल नहीं है, ओशंस वाला समुद्र बिल्कुल नहीं है। The greater is the speed of getting this gap filled, the higher is the value of utility. The speed with which the gap between present and future can be filled, if it is higher, then the product is going to be called as having more utility. So let's say I am a very boring person. I cannot get any friend under the sun. And the company, if it tells me that once I get a bike, I would get a friend, then that bike, in order to get me a friend, is gonna have some utility. और जितनी और इसके अंदर इन्होंने शॉर्टकट बताया, because another route could be that I keep on studying, I acquire a good job, I acquire a good status in the market, and then people would automatically come to me to get my friendship. अगर हम लोग कामयाब हो जाता है तो लोग अपने आप दोस्त बनने आता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। जितना कामयाब होगा उतना ही लोग जल्दी दोस्त बनने आएंगे। लेकिन वो बहुत लंबा रास्ता है, कुछ साल पढ़ना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, फिर अगेन अपने लिए अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करना पड़ेगा, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। 3 4 5 6 ईयर्स लग सकता है सबके अंदर। और आफ्टर 6 ईयर्स अ फ्रेंड वुड कम टू मी, और कंपनी ने शॉर्टकट बताया कि बाइक खरीदो फ्रेंड लो। यही तो हुआ यहाँ पे। दे हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग एल्स। उन्होंने मेहनत, उन्होंने ये तक नहीं बताया कि बाइक कैसे खरीदे, बाइक खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा। उन्होंने सीधा बताया अगर बाइक मिल गया तो फ्रेंड मिल जाएगा, प्लेन एंड सिंपल। ठीक। तो उन्होंने स्पीड बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी इस गैप को फुलफिल करने की। एंड देन वी स्टार्टेड असाइनिंग सम वैल्यू टू द बाइक। सो ऑल द बॉयज, आई नो मैनी बॉयज, एंड दे ऑल लव टू हैव अ बाइक, है कि नहीं? लड़कों को बाइक अच्छी लगती है ना? अरे यस नो बोलना पड़ेगा। बॉयज लव बाइक और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. राइट। क्योंकि वो हमारे एक डिजायर्ड फ्यूचर की अटेनमेंट की स्पीड बढ़ा देती है। हम लोग को वो पढ़ाई लिखाई वाला रास्ता नहीं बताया उसने, मेहनत करने वाला रास्ता नहीं बताया, सोसाइटी में अपने रिकॉग्निशन का रास्ता नहीं बताया। उनने सिर्फ इतना बताया बाइक मिलती ही फ्रेंड मिल जाएगा, एंड ऑफ डिस्कशन। और ये शॉर्टकट था। दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट ऑल द बॉयज अक्रॉस द ग्लोब दे लव टू हैव अ बाइक। सेकंड इज ई, एक्सक्लूसिविटी। आप एज्यूम करो कि let's say from tomorrow onwards, all of us are required to wear the same shirt, same pant, same set of shoes, and we are required to wear the same wristwatch, same mobile phone, everything same. How would you like the situation? कैसी लगेगी? हम सबको बिल्कुल एक जैसा दिखना है, मतलब if the entire class starts looking like photic, how good or bad it would be? Photic Yes, sir. कैसा होगा? हम सब लोग, मैं तेरे सारे बैचमेट्स सब तेरे जैसे दिखने लगे, सर बिल्कुल पहचान जब नहीं अरे पाएंगे, बिल्कुल, हाँ। पहचान नहीं पाएंगे सर। नहीं सुनाई पड़ा बेटा, क्या बोला? ऐसा अरे आवाज कट रही है यार। एनीवे, तो जहां तक मुझे अंदाजा है कि इफ वी ऑल ऑफ अस स्टार्ट लुकिंग लाइक फोटिक, देन फोटिक हिमसेल्फ वुड नॉट लाइक इट। उसको उसको ठीक नहीं लगेगा। हाँ, पहचान नहीं पाएगा एक दूसरे को। बिल्कुल ठीक बात है, फोटिक ने मेरे को टेक्स्ट किया दैट वी वुड नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज वन अनदर। और वो जब हमारा रिकॉग्निशन, जो हम लोग जिस जिस जैसे हम लोग को बचपन से सिखाया गया है, ऑल ऑफ अस आर यूनिक। हमारी मॉम से जब हम छोटे थे सबको बताया था कि ऑल ऑफ अस आर वेरी ब्यूटीफुल, है कि नहीं? बताया था ना मॉम्स ने?
अरे यस और नो, व्हेन वी वर स्मॉल किड, गोदी में थे Yes, या प्रैम में चलते थे, तो हमारे मॉम सारे लेटर बताते हैं हम लोग बहुत सुंदर है ना? तो हमको तो बचपन से बताया गया है, इफ टुमारो ऑनवर्ड्स हम सब लोग एक जैसा दिखने लगे, तो हमारी तो पहचान ही खत्म हो जाएगी। हम लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कि दिस इज दी फोटिक और दिस इज अनुराग और दिस इज जॉय, क्योंकि सबके सब फोटिक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, और जब पहचान खत्म हो जाएगी तो हमारे लिए लाइफ का जीने का वो जो मतलब है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। सो एनी प्रोडक्ट which is while fulfilling the gap can provide us some exclusivity, हमको वो बाकी लोगों से अलग दिखाए देखने में मदद करता है। लाइक ऑल ऑफ अस मस्ट बी हैविंग सम व्हीकल इन आवर होम। हमारे पास घर में कोई कार या बाइक स्कूटर तो पक्का होगा ना? यस और नो? Yes, sir. yes, sir. लेकिन अगर हम में से किसी एक के पास फरारी हो या लैम्बोर्गिनी हो, तो कैसा होगा? अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? Sir, अच्छा है। अच्छा लगेगा। सो एनीथिंग विच इज एबल टू मेक अस एक्सक्लूसिव, हमारे जैसी चीज किसी और के पास ना हो, एनीथिंग विच इज एबल टू मेक अस एक्सक्लूसिव, हम लोग उसको ज्यादा वैल्यू असाइन करते हैं, हम लोग उसकी ज्यादा वैल्यू देने को तैयार रहते हैं, हम लोग उसकी ज्यादा यूटिलिटी मानते हैं। सो every product which is having some utility should have speed in terms of fulfilling the gap. Every product which has utility should be able to fill the gap between present and future by making or keeping us exclusive. Last is appreciation, कि हम लोग, अच्छा जैसे मान लो ना हमारे पास फरारी तो आ गई, लेकिन हम एकदम से बहुत घमंडी हो जाए, हम सब लोगों से खराब तरीके से बात करने लगे, तो ठीक होगा? हाँ, नहीं सर। नहीं होगा। तो जो हमारे पास एक्सक्लूसिव आइटम है, जो हमको जल्दी से मिला है, अगर वो लोगों के साथ अप्रिशिएट किया जाता है, लाइक वंस वी गेट अ डिग्री, all the people who know to us, who know us, they would appreciate us. Once we get a bike, all our friends would start appreciating us. Once we acquire anything, if we get a job, again people, friends, family, they all will start appreciating us. So जितने ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा उसकी यूटिलिटी कहलाती है या उसकी वैल्यू कहलाती है। गॉट इट? ओके फाइन। Yes, sir. So if we want to offer anything to any person, then we should give him a speed, we should keep him exclusive, and the solution that we are providing as in form of product should be appreciated by the masses. Then the value would be very, very high. If the appreciation is normal, regular type, then value would not be higher. Like all of us are wearing shirts, right? But those shirts are not prepared by any fashion designer. किसी फैशन डिजाइनर, पियरे कार्डन, पियर कार्डन ने वो ड्रेस नहीं बनाया है, तो वो रेगुलर नॉर्मल शर्ट है, जैसे तुम पहना है वैसी मैं भी पहना है, देयर इज नो अप्रिसिएशन। बट अगर उस पे पियरे कार्डन का लोगो लगा हो, देन पीपल विल स्टार्ट वंडरिंग, वाह कितनी शानदार शर्ट है, and that appreciation would make the value very, very high. And that's why the shirts offered by Pierre Cardin are very, very expensive also. फरारी कार सब लोग देखते ही खुश हो जाएंगे, कितना बढ़िया, कितना बड़ा आदमी, कितना पैसे वाला आदमी है। वैसे फरारी कार की कीमत खुद भी बहुत ज्यादा है, 2.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ऐसे है उस कार की। डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट वैल्यू, एंड सो appreciation if there, then the value would be higher. I believe that when we were introducing the topic, we need to understand this one more part, the family life cycle.
utility of a product can be designated to different stages in family life cycle. And family life cycle is very, very simple. First step of family life cycle is young earning bachelor. And I tell you why we are starting with young earning bachelor, not as the teenagers, क्योंकि सामान तो तुम लोग भी खरीदता है. तो why this family life cycle from the point of management? We are starting with young earning bachelor. This is the most important question. हम लोगों ने जब फैमिली लाइफ साइकिल स्टार्ट किया, दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट, but we are not taking you into count the people, kids who are mature enough to take their own decision, who are studying in higher degree courses, and we are still not counting them as the part of family life cycle. ऐसा क्यों? कोई आइडिया बताओगे? Why we are not counting you kids as part of this family life cycle? क्योंकि तुम सब लोग बड़े तो हो चुके हो. All of you can take your decisions. All of you are taking your decisions on daily basis. सब लोग डिसीजन ले रहा है. Everybody is taking rational decisions with regards to oneself. Still, the companies are not counting you. Even law is on the side of companies. You kids are not called as per law individual. आज की तारीख में तुम लोग इंडिविजुअल भी नहीं एज पर लॉ. जो छोटा बेबी होता है उसमें और तुम्हें एक लॉ के लिए कोई खास अंतर नहीं है. ऐसा क्यों? कंपनियां इतने बुरे तरीके से क्यों बिहेव कर रही है कि यंग ग्रोन अप किड्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट? ये तो खराब बात है ना. अरे ये बात खराब है कि अच्छी है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, आवाज कट कट के आ रहा है. बेटा, माय क्वेश्चन इज दैट आवर टेक्स्ट बुक, हमारी किताब हमको दिखा रही है दैट फर्स्ट स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल इज यंग अर्निंग बैचलर. ठीक. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आई ओनली वांट टू नो कि व्हाई नॉट यू किड्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल. क्योंकि जैसे फैमिली लाइफ साइकिल, अगर इफ यू गो बाय द नेम, हम लोग सिर्फ नाम से जाए तो इट्स फैमिली लाइफ साइकिल. ऑल ऑफ यू हैव नॉट स्टार्टेड योर फैमिलीज. लेकिन वो जो यंग अर्निंग बैचलर है, शुरुआत तो उसने भी नहीं किया है. एंड देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ यंग अर्निंग बैचलर. तो तुम लोगों को भी काउंट करना चाहिए था. ऑल ऑफ यू आर टेकिंग योर डिसीजंस ऑन डेली बेसिस. ऑल ऑफ यू आर रैशनल थिंकिंग इंडिविजुअल्स. तब भी तुमको कंपनी काउंट ही नहीं कर रही है. जब नौकरी लग जाएगा तब काउंट करेगा. ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा. ऐसा क्यों है कि जब तक तुम लोग कमाएगा नहीं, कंपनी तुम लोग को काउंट नहीं करेगा? And you have the decision making power. If a year or 2 years after you get your job, even then you will retain your decision making power. आज भी डिसीजन लेने की ताकत है, 2 साल बाद भी रहेगी. तो तुम लोगों को आज काउंट क्यों नहीं किया? वाई द किड्स आर लेफ्ट आउट ऑफ दिस फैमिली लाइफ साइकिल? शादी तुम्हारा भी नहीं हुआ है, यंग अर्निंग बैचलर का भी नहीं हुआ है, वरना बैचलर नहीं लिखता वो, है ना? So why not you kids are being counted? Sir, because we are not earning that child. You don't have the decision making power, authority to spend your money. You always need permission from your parents to spend the money in your pocket. Even let's assume that you all of you have 1 lakh rupees in their pockets. But if you want to go to, let's say, Delhi or Mumbai or Bangalore for a week, you cannot go without getting permission from your parents. Again, even if they give you the permission, you cannot subscribe a chartered plane. वो जो छोटा वाला chartered plane आता है ना, जो सिर्फ हमको लेके जाता है,
जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लेके जाते हैं। सो एक फ्लाइट यहाँ से दिल्ली का उसका भी कुछ ऐसी होगा 1.5 लाख का, शायद, मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता उसका प्राइस। So if you have, let's say, 1 or 2 lakh in your pockets, even then you won't be able to call for a chartered plane to go to Delhi, because you would need permission from your parents. So since you kids are not earning, that's why you don't have the authority, you don't have the decision making power. And since you don't have the authority to spend the money in your pocket, that's why you are not part of this family life cycle. Young earning bachelor is a person who has a job, who has the authority on his money, and he is employing his time to earn that money. Up, let's assume, let's try to understand the purchase pattern of this young earning bachelor. वो किस टाइम पे क्या खरीदेगा? Let's say tomorrow you have a job. सबसे पहले क्या खरीदना चाहोगे? And your salaries are somewhere around 40-45K. 45,000 का जॉब लगता है कल, और now you are living in a separate city. तो क्या खरीदना चाहोगे? Not in your hometown, because जो कोर्स तुम लोग कर रहे हो उसमें चांसेस यही है कि that you could would be getting a job if you join a company in some other city apart from your hometown. अपने hometown से बाहर नौकरी मिलेगा, तो नौकरी मिला, पहले महीने का सैलरी आया, and now since you have the authority because this is your own money, तो क्या खरीदोगे सबसे पहले? सर कुछ जरूरत चीजें अगर हो तो वो खरीद लेंगे। हाँ बिल्कुल, से हो सकता है कि तुम लोग एक बाइक फाइनेंस कराओ जिससे घर से ऑफिस जाने में आसानी हो सकता है तुम लोग अपने लिए एक छोटा टीवी खरीदो जिससे जब शाम को घर पे लौट के आओ, थक के आओ, तो टीवी देख कर थोड़ा सा रिलैक्स कर सको। हो सकता है तुम लोग एक छोटा फ्रिज खरीदो जिससे कि तुम लोग जब शाम को घर पे आओ तो तुम लोग उसके अंदर कुछ रखा हुआ खाना मिल सके। हो सकता है एक छोटा माइक्रोवेव खरीदो जिससे अगर घर पे शाम को थक के आओ तो उस माइक्रोवेव में खाना गर्म करो और खा लो। मल्टीपल आइटम्स आर देयर बट दे आर गोना बी ओनली फॉर योर ओन नीड। ठीक है। एंड उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो थोड़ा बहुत फैशन का आइटम, कोई अच्छी शर्ट, कोई अच्छा सनग्लास, कोई अच्छा पेन, कोई अच्छी घड़ी, और अगर पैसा 2-3 महीने में बचा ले ढंग सा तो ठीक कोई अच्छा सा मोबाइल, यही सब तो खरीदोगे, यस सर। है ना? So you see, once you identify the person, you actually are able to judge his purchase pattern. ये आदमी इस एज के अंदर क्या क्या खरीद सकता है। कोई भी यंग अर्निंग बैचलर किसी भी हालत के अंदर कोई ऐसा सामान नहीं खरीदेगा जो एक 50 इयर्स या 60 इयर्स के आदमी को चाहिए। खरीदोगे क्या अपने यूज के लिए? लाइक ऑल दी 50 year old people और 60 year, जब द पीपल हु आर ओल्डर, they prefer to keep a walking stick with them, है ना? देखा होगा वॉकिंग स्टिक के साथ बूढ़े लोगों को चलते हुए, यस सर। है ना? वुड यू परचेज दैट वॉकिंग स्टिक फॉर यू कि जब बूढ़ा हो जाएगा तो यूज करेगा? नो सर। नहीं करेगा। ठीक, दैट्स व्हाई it becomes easier once you identify the life cycle stage, then it becomes very easy to identify the purchase pattern of that man. Next is newly married couple, and now we know the concept that this newly married couple, अभी अभी शादी हुआ है और या तो मियां बीवी दोनों काम करता है, husband wife both are working, or they are not working, one is working another one is a homemaker, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। Let's try to identify their purchase pattern. न्यूली मैरिड कपल क्या खरीदना चाहेगा? And now this is the job of the manager. Once a manager is able to identify the target customer कि हम किसको सामान बेचने जा रहा है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको क्या क्या खरीदना हो। Once they identify what the person to whom they are going to sell the item he can purchase or she can purchase, then they can customize their own offering. So now we have a customer, all of us are the tour operators, हम लोग अपने ऑफिस में बैठा है, हमारे पास एक न्यूली मैरिड कपल आता है, हम उसको कैसे बेचेगा अपना सामान? या न्यूली मैरिड कपल नॉर्मली क्या खरीद सकता है?
घर बेटा घर खरीदना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि घर बड़ा महंगा आता है। वो ये तो कर सकता है कि अब 1 रूम अपार्टमेंट के बजाय 2 रूम अपार्टमेंट ले ले, लेकिन घर खरीदेगा नहीं। सो बिगर हाउस ऑन रेंट, फाइन, एक्सेप्टेड, टेक इट। A vehicle or a car so that husband and wife can travel with ease, again accepted, take it, can be purchased. A small car can be purchased, or even a bike can be purchased. Now either the person, young earning bachelor, has become a senior, that's why he is getting married, or the wife of that young earning bachelor is also working. दोनों हालत के अंदर घर में आने वाला सैलरी बढ़ जाता है, दोनों हालत के अंदर घर में आने वाला पैसा ज्यादा हो जाता है। And now they can start procuring or purchasing the items which can facilitate the life of both the people. And newly married couple would like to purchase a lot more fashion items, क्योंकि अभी अभी शादी हुआ है, दोनों को सुंदर दिखना होता है। दोनों को सुंदर दिखना होता है तो अच्छे कपड़े, अच्छे चश्मे, अच्छे मोबाइल रखना चाहते हैं। और पैसा तो होता ही है पास में, दोनों जने कमा रहा है। या वो जो यंग अर्निंग बैचलर था वो सीनियर हो गया, सीनियर हो जाएगा तो भी पैसा मिलेगा, वाइफ कमाएगी तो भी पैसा मिलेगा। दोनों हालत के अंदर पैसा ज्यादा आ रहा है, और ज्यादा आ रहा है तो दे कैन फुलफिल देयर डिजायर्स, जिसमें फैशन आइटम्स एक है, जिसमें एक बड़ा 2 कमरे का मकान या 3 कमरे का मकान सेकंड है। जो परचेज ना करे तो एटलीस्ट रेंट पे तो लेगा ही लेगा। घर के अंदर उसको पता है न्यूली मैरिड कपल है तो घर में अब रिश्तेदार, मेहमान, गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे, वो भी शाम को विजिट कर सकते हैं। सो घर में सोफा आएगा, फ्रिज आएगा, टीवी आएगा, डबल बेड हो जाएगा। पहले सिंगल बेड पे रह रहा था, अब डबल बेड हो जाएगा। सो ऑल द हाउस होल्ड आइटम्स and fashion items. This is gonna be the purchase pattern of a newly married couple. And let's try to assume कि अब हम लोगों को इसको एक टूर प्लान बेचना है। कैसे बेचेगा, क्या कहेगा इसको? है कोई आइडिया? मल्टीपल थिंग्स, सर मतलब it is a tradition across the globe. जॉय कुछ बोल रहा है क्या? नहीं सर Anyway, so it is a tradition across the globe. Whenever a newly married couple comes together, they whenever they get married, they always go out of their home for some time to spend together alone, which normally is called as honeymoon period, है ना? तो बाहर जाता है। It has social relevance also, because if a husband and wife are able to understand themselves in totality, then only they would be able to manage their life together. अगर अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे को ही नहीं जान पाता है तो वो लाइफ टुगेदर कैसे साथ साथ स्पेंड करेगा, right? So that period is given to them specifically for this purpose, that they spend some time together, they spend some time alone, and they spend some time to understand one another, right? So हमको उसको एक टूर प्लान बेचना है, कैसे बेचेगा, क्या बताएगा? कोई आइडिया नहीं। अच्छा देखो, एक ना मैं ना प्रैक्टिस पे है मेरे पास ये, कि whenever kids start keeping unnecessary quiet, then a teacher has a right to give them an assignment. और मेरे असाइनमेंट्स का ना पैटर्न बहुत सिंपल सा है। I'll give you 7 to 8 pages to write on any topic of your subject, and those pages should be handwritten both side. ठीक है, तो अगर मैंने असाइनमेंट दिया ना बेटा, तो आज ही लिखो, और हाँ लास्ट डेट हमेशा उसकी कल होती है। सो मैं, अगर तुम लोग इतनी देर चुप रहे तो मैं असाइनमेंट दे दूंगा, असाइनमेंट दूंगा तो वो तुम लोग को आज ही हैंड राइट करके फिर वो उसकी फोटो क्लिक करके मेरे को मेल में भेजना होगा। एंड ऑल ऑफ यू आर शेड्यूल्ड टू रिसीव एटलीस्ट 2 असाइनमेंट इन दिस सेमेस्टर ऑल्सो। हर सेमेस्टर में मिनिमम 2 असाइनमेंट्स देना इज अ कंपल्सन। तो तुम लोग सर ऐसा, थोड़ा थोड़ा टाइम टाइम दे दीजिएगा थोड़ा सा असाइनमेंट के। बेटा मैं बाद में देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग को यस नो बताना पड़ेगा, तुम लोग को बात करनी पड़ेगी, वरना मैं गुस्सा हो जाएगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा होना टीचर का राइट है, सारे टीचर गुस्सा हो सकते हैं। जो तुम लोग बात नहीं करेगा मैं गुस्सा हो जाएगा।
सर हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं ना। नहीं बेटा करते हो, मैं सिर्फ जैसे ये जो चीजें है ना, दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू डेवलप प्रोफेशनली। अगर तुम लोग रिएक्ट नहीं करते हो, आई एम आस्किंग यू अ प्लान, हम लोग एक टूर प्लान एक न्यूली मैरिड कपल को कैसे भेजेगा? दिस इज द थॉट प्रोसेस which is required to be embedded in you, because all of you are required to perform in the real market condition, and this is going to become a real time situation somewhere down the line। ये पक्का होगा, तुम जब भी तुम लोग जॉब शुरू करेगा तो ये होकर रहेगा that you would be selling a plan to somebody, and this entire educational knowledge that we are acquiring, you need to use it for practical purposes। हम लोग तुमको ऐसा कुछ नहीं सिखा सकता है जिसका प्रैक्टिकल यूज ना हो। तो अगर मैं बच्चों से कह दूं ये सारे के सारे फैमिली साइकिल क्रैम कर लो, क्रैमिंग इज वेरी इजी, सारे बच्चे क्रैम कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर क्रैमिंग इट यूजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा यूज नहीं कर पाएगा एजुकेशन को अपनी, तो उसको काम भी नहीं मिलेगा, है ना? ये तो मानते हो ना? यस सर। तो इसलिए मैं सिर्फ ये इमेजिनरी सिचुएशन है राइट नाउ, बट इट इज गोना बिकम प्रैक्टिकल सिचुएशन टू ऑल ऑफ यू समवेयर डाउन द लाइन। आफ्टर 1.5 ईयर ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, ये रोज करना होगा। एंड वी नीड टू डेवलप आवर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ स्पीकिंग एंड थिंकिंग। और अभी इस वक्त क्लास, एंड मैं शायद बताया भी था, क्लासरूम्स आर द बेस्ट प्लेसेस टू मेक मिस्टेक। क्लासरूम में गलती करना सबसे अच्छा होता है, बिकॉज अगर रियल टाइम में हम रियल लाइफ में गलती करता है तो हमको पहले पनिशमेंट मिलता है, चोट लग जाती है, कस्टमर चला जाता है, पैसा नुकसान हो जाता है। लेकिन क्लासरूम के अंदर जब गलती करता है ना, तो एक आदमी टीचर होता है वहां पे उसको गलती को करेक्ट करने के लिए, सो दैट वी डोंट मेक दैट मिस्टेक इन रियल लाइफ। तो क्लासरूम आर दी बेस्ट प्लेसेस। अगर तुम लोग मेरे को खराब खराब प्लान नहीं बताएगा तो भी मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं ठीक ही तो करेगा उसको। और वो ठीक करके एक एजुकेशन लेना, लर्नेड पर्सन बनना इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। तुम भी लोगों ने बताया तुम लोग डिग्री कोर्स कर रहा है, डिग्री का पर्पस ये है कि तुम लोग नॉलेज लेगा, वो नॉलेज को अप्लाई करेगा, फिर जॉब लेगा। ठीक, तो ये जो मैं पूछ रहा हूँ सवाल तुमसे, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। इसका पर्पस तुम लोग को डराना नहीं है बिल्कुल। इट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, ऑल ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू एक्वायर दिस नॉलेज एंड अप्लाई इट। ठीक, सो अगर गलत भी आ रहा है दिमाग में तो मुझे बता दो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। एंड हाँ, मैं बताया तुम लोगों को शायद आफ्टर 20th योर फिजिकल क्लासेस विल स्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली। अभी तक प्लान ये बन रहा है कि 20th के बाद हम लोग बच्चों को कॉलेज बुला लेगा। बताया मैंने अभी तक? नहीं सर। हाँ, 20th के बाद बुलाएगा। 99.99% चांसेस आर देयर 20th ऑफ दिस मंथ हम लोग मैसेज भेज देगा, बच्चे आ जाए अपना अपना RT-PCR का रिपोर्ट लेके। एंड देन तो हम लोग क्लास में सामने फेस टू फेस होगा, वहां पे तो बात करने का अलग बन जाएगा। लेकिन ये ऑनलाइन में दिक्कत ये कि मुझे कई बार पूछना पड़ेगा, एंड यू किड्स आर रिक्वायर्ड टू स्पीक। तो अगर गलत भी आइडिया है दिमाग में कि हम कैसे टूर प्लान बेचेगा न्यूली मैरिड कपल को, तो प्लीज शेयर, बताओ। हम उसको या तो मान लेगा कि ये प्लान सही है, या हम उसको ठीक करेगा। ठीक है? सर हाँ सर सेकंड डोज लेके आना जरूरी है, ये कंपलसरी। बेटा, सेकेंड डोज इज, मैं बताता हूँ होगा क्या ना बच्चे, कि अगर सपोज आफ्टर ज्वाइनिंग द फिजिकल क्लासेस any kids somehow acquires the disease from any outside person and brings that disease to university, then other kids are at risk, all the teachers are at risk, क्योंकि टीचर और बच्चे तो सब आसपास ही रहेंगे। और उससे फिर क्या होता है कि परेशानी बढ़ जाती है। जिस पेरेंट के जिस जिस बच्चे के पेरेंट्स को लगेगा कि उनको ये बीमारी यूनिवर्सिटी से मिल गया है, वो लोग यूनिवर्सिटी पे आके गुस्सा करेगा, है ना? तो वो हम लोग नहीं चाहते कि किसी पेरेंट को ऐसा लगे कि हम उनके बच्चे को बीमारी यूनिवर्सिटी से मिला है। तो सेकंड डोज अगर नहीं लगा है तो भी RT-PCR तो लेके आना ही होगा। RT-PCR इज द टेस्ट which declares that you don't have the corona right now। तो वो टेस्ट रिपोर्ट जरूर लेके आनी है, और सेकंड डोज लगवा लेनी चाहिए। It is advisable that all of you should administer, like all of us teachers in the university have actually got administered these 2 doses। हम लोग को ऑफिस आने से मना कर दिया था अगर हमारे कोई 2 डोज नहीं लगा है, हम सब लोगों ने लगवाया। तो yes, all of you kids should get administered 2 doses, and
इफ नॉट, अगर उसका दिन बाद में, डेट बाद में आता है तो भी आरटीपीसीआर टेस्ट तो लेके आना ही होगा। ठीक है। यस सर। और हाँ, जिन बच्चों को ना डबल डोज लग चुका है उनके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट गवर्नमेंट फैसिलिटीज में फ्री है। जिनको एक ही डोज लगा है उन सब के लिए पैसा लग गया है, जिसको एक भी डोज नहीं लगा उसको भी पैसा देना पड़ेगा, फीस चार्ज करने लगी गवर्नमेंट अब। तो अगर एक डोज लगा है या एक भी डोज नहीं लगा है तो आरटीपीसीआर टेस्ट इटसेल्फ वुड कॉस्ट यू मनी। लेकिन अगर दोनों डोज लग गया है तो आरटीपीसीआर इज फ्री, फिर चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे बस स्टॉप पे हो, आरटीपीसीआर इज फ्री। तो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर गेटिंग डबल डोजेस, लगवा लेना। ठीक है। चल बेटा, मेरा टाइम भी खत्म हो रहा है, आज खत्म करते हैं क्लास यहीं पे। टेक केयर, ओके सर। हैव अ गुड डे, थैंक यू सर। थैंक यू सर। and hopefully we'll meet on 20th or after 20th. चलो। यस थैंक यू सर, सर। मैं भी। अरे मेरे को अटेंडेंस तो लिया ही नहीं, मैंने अभी कुछ और बच्चों ने ज्वाइन किया था। जिमान तो है, मैंने इस पे लगा दिए। मैं एक बार दोबारा कॉल कर रहा हूँ। जयश्री, ऑल द किड्स हु आर एब्सेंट, जो अभी तक नहीं निकालेगा, मैं फिर उनका नाम ले रहा हूँ। कृष्मान, साहिल, विशाल, लवशाम, बैरिंडी। बैरिंडी इज देयर? अरे बैरिंडी है कि नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा। नहीं है सर। नहीं है सर। ओके फाइन। सोनी, सोनी शर्मा, रिकेश, रुक जाओ बेटा, मैं देख लूं। Yes, Sony is there, Dipankar is there, and Robam Lankham is there. So Sony is there, Rikesh, and Robam. And now I have left only one, that is Lobsang, Vishal, Sahil, Anurag, and Jayshri. इतने बच्चे बचे जिनका सर अटेंडेंस नहीं लगा है। सर अनुराग प्रेजेंट सर, मैं प्रेजेंट हूँ। अनुराग प्रेजेंट? यस सर। सर आपका एक्चुअली आवाज सुनाई नहीं दे रहे, तो हम लाइक रिप्लाई नहीं दे सका। बेटा मुझे टेक्स्ट करेगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नाम लिख दो सारे के सारे, या अपनी क्लास पे एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, ये हो जाएगा। अपनी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो? यस सर। एक बना के मुझे ऐड कर लो उसके अंदर, फिर अटेंडेंस वहीं पे ले लिया करेंगे बच्चों से। ये कॉल करके आवाज ना आने का दिक्कत खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। तो ना एक POM PTM थर्ड सेमेस्टर नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना के मुझे ऐड कर लो, अटेंडेंस उसी में दे देना। ठीक ओके है। सर। हर बच्चे को अपना नाम लिखना होगा उसके अंदर, नाम या, और मैं अटेंडेंस यहाँ वहां से मार्क कर लिया करूंगा। डन? यस सर। चलो, टेक केयर। थैंक यू सर।